انٹرویو میں بھی مجھ سے یہ پوچھتے رہے کہ ان حالات میں آپ علل اعلان اس طرح سخت باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، حضور پاک کا ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے ہم حق بات اسٹیج پر ہی نہیں، ظالم کی چھاتی پر چڑھ کر کے بھی بیان کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے خمیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق گوئی عطا کی ہے۔ حضور کا جو غلام ہوتا ہے وہ حالات سے ڈر کر حق بات کو چھپایا نہیں کرتا۔ مجھے ایک بات آپ بتاؤ، آپ مسلمان ہیں، اس بات پر آپ کو فخر ہے یا نہیں ہے؟ بے شک بے شک، سب کو فخر ہے۔ جس بات پر ہمیں فخر ہے پھر بولنے پر بھی فخر ہونا چاہیے، بولنے پر بھی فخر ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا، اس نے ہماری پیشانیوں کو غیروں کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے۔ اس رب العالمین نے ہمیں خالص پاکیزہ حلال چیزوں کا رزق عطا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ خیر امت آپ کی اسپیشلیٹی کیا ہے؟ پتا ہے دنیا ہر ایرے غیرے کے سامنے جھک جاتی ہے۔ ارے چوہے بلی کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں لوگ، اپنے نہ جانے کون کون سی چیزوں کے سامنے لوگ پیشانیاں جھکا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، جانور تو رزق کے سامنے کھانے کے لیے بھی جھک جاتا ہے، جانور سر جھکا کر کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر جھکا کر کھانے والا نہیں بنایا ہے، ہاتھ سے اٹھا کر کھانے والا بنایا ہے۔ کیوں؟ یہ پیشانی رزق کے سامنے بھی نہ جھکے، صرف رزاق کے سامنے جھکے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہاری خصوصیت ہے کہ اللہ نے تمہاری پیشانی کو محفوظ رکھا، تمہارے غیرے کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ اور اس بات پر فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خدا کے یقین کا جو عقیدہ عطا کیا ہے، اس کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اور لوگ تو آج کنفیوز ہیں، کون سے خدا کو پوجیں، کون سے خدا کو چھوڑیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں دو واقعے ایسے ہیں جن کو ایک واقعے کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور دوسرے کو یاد کر کے ہنسی آ جاتی۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رونا اس بات پر آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جب ہمارے گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی تو ہم گردن مروڑ کر کے اسے دفن کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے کے بعد اب ان حالات کو یاد کر کے رونا آتا ہے کہ ہم نے جہالت کے زمانے میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے بیٹیوں کی عظمت بتائی۔ بے شک بے شک۔ پھر پوچھا گیا کون سا واقعہ ہے جس پر آپ کو ہنسی آ جاتی ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم جب سفر پر نکلتے ہمارے کئی خدا ہوتے تھے، کوئی ہوا کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، زمین کا الگ، آسمان کا الگ، بیماریوں کے لیے الگ، گھر میں بال بچوں کے لیے الگ، سب کے الگ الگ خدا بنے ہوئے تھے۔ وہ کہتے جب ہم سفر پہ جاتے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، آٹا گوندھ کر کے اسی کے بنا لیتے تھے، کیونکہ جب گھر پر رہتے تھے تو پتھروں کے بنے ہوئے تھے اور وہ بھاری ہوتے تھے، اٹھا کر کہاں لے جائیں، اور ایک ہو تو لے جائیں، 100 ہیں کہاں اٹھائیں گے، تو ہم آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں آٹے کے بنا کر لے کر تو جاتے تھے سفر میں، اور کبھی اگر ہمارا کھانا ختم ہو جاتا تو ہم اپنے خدا کا کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیتے، کبھی پیر توڑ کے کھا لیتے، کبھی اس کی گردن کو پکا کر کھا لیتے تھے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں آج ایمان لانے کے بعد اس واقعے کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے کہ کیسی جہالت کے زمانے میں تھے، اللہ کا کتنا کروڑا احسان ہے کہ اس نے کروڑوں سے نکال کر ایک کی بارگاہ میں لے آیا ہے۔ اور یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ہے آپ کو۔ عزیزان گرامی وقار، کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے تم پر؟
तुम इस बात पर जितना फख्र करो वो कम है। लोग अपनी प्रॉपर्टियों पर, अपनी जायदाद पर, अपने मनसब पर, अपनी कुर्सी पर फख्र करते हैं। मैं कहता हूं सिर्फ तुम्हें निस्बत मुस्तफा पर फख्र हो। सुभान अल्लाह। इस्लाम तुम्हारे साथ है, इस बात पर फख्र हो। दीन इस्लाम अल्लाह ने तुम्हें अता किया, इस बात पर फख्र हो। कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा दूसरा दीन लेकर के आया क़यामत के दिन, अल्लाह फरमाता है हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और वो घाटे में होगा। ऐ सुन्नियो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ कि उसने तुम्हें मुसलमान बनाया, उसने तुम्हें एक खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत का कायल बनाया है। और एक बात मैं आपकी बताऊं, हमारी खुसूसियत, अक्सर ऐसा होता है कि मुसलमानों को खुद अपनी वैल्यू नहीं मालूम है, अपनी हैसियत नहीं जानते। पूरी दुनिया भर में घूम करके देख लेना, जितने भी धर्म हैं, जितने भी दीन हैं, जितने भी मजहब हैं, सबों ने अपने अपने खुदा की कोई ना कोई तस्वीर बनाई है। सबके इबादत खानों में उन खुदाओं की तस्वीरें बनी है जिसके सामने झुकते हैं। तन्हा मुसलमान ये कौम है, करोड़ों मस्जिदों में भी कहीं खुदा की तस्वीर कहीं है? कहीं किसी मस्जिद की दीवार पर खुदा की तस्वीर बनी है? अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं बनी। और ये तुम्हारी स्पेशलिटी है कि बगैर देखे उस रब्बुल आलमीन को जब अल्लाहु अकबर कह दिया जाता है, सर झुका लिया जाता है। यही अल्लाह फरमाता है तुमिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह को बगैर देखे मानते हो। ये तुम्हारी फजीलत है, तुम्हारी फजीलत है। अल्लाह करीम की बारगाह में सर झुकाने वाली ये करोड़ों की कौम कभी अपने इमाम से मस्जिद से जाकर झगड़ा तो करती है। दूसरे मामलात में इमाम साहब सुबह कहाँ थे, दोपहर कहाँ थे, फलां से आप क्यों मिले, इससे क्यों मिले, ये सारी चीजों पर तो झगड़ा करते हैं आप। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई मुक्तदी इमाम से आकर ये झगड़ा किया हो कि आप अल्लाहु अकबर कहकर नीचे क्यों जाते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर क्यों उठते हैं। कभी झगड़ा किया? नहीं कर सकते हो। बल्कि अगर इमाम दूसरा लफ्ज कहेगा तब झगड़ा होगा। उससे कहा जाएगा हम उसी वक्त झुकेंगे जब तुम अल्लाहु अकबर कहोगे, उसी वक्त उठेंगे जब अल्लाहु अकबर कहोगे। ये तुम्हारी स्पेशलिटी बता रहा हूं। अल्लाह का करोड़ा एहसान है। उस पर मजीद ये है तवज्जो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें खाने पीने के लिए भी इस रुए जमीन पर मौजूद हलाल और पाकीज़ा चीजों का हुक्म अता किया। तुम्हें ये नहीं कहा गया है कि जो मन में आ जाए सब उठाओ और खा लो। कीड़े मकोड़े, कचरा, फुजला, ये सब खाने का तुम्हें हुक्म नहीं है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जब अशरफुल मखलूकात बनाया और तुम उम्मत मुस्तफ़ा हो तो इस बात पर फख्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी जुबानों को भी हलाल चीजों से पाक चीजों से रिस्क अता किया है। यह हकीकत है या नहीं? क्या मुसलमान शराब पी सकता है? सबको पता है ना। अरे सिर्फ अकल उससे जाया होती है, इसलिए उसे पीना मना कर दिया गया। मुसलमान मरी हुई चीज नहीं खा सकता, मुसलमान खून नहीं पी सकता, नापाक चीज है। ये नापाक चीजों से अल्लाह ताला ने तुम्हारी जुबान को बचा रखा। और हद तो ये है कि रब तबारक व तआला का इस बात पर शुक्र बजा लाओ कि अल्लाह ने तुम्हें दूध पीने वाला बनाया है, पेशाब पीने वाला नहीं। हाँ, दूध पीने वाली कौम है। अल्लाह का करम है कि हम पाकीज़ा और हलाल चीजें खाते हैं। हम वो नहीं है जो गोबर को कोहे नूर बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध रखने वाली कौम भी कहेगी, अक्ल रखने वाली कौम भी कहेगी, मियाँ क्या खाने की बात कर रहे हो, क्या खाने की बात कर रहे हो, क्या पीने की बात कर रहे हो।
कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो। हद हो गई। बहरहाल मैं जिहालत की बात कर रहा हूं, अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। लेकिन तुम्हारे लिए कि उस रब्बुल आलमीन ने तुम्हें एक खुदा की इबादत पर लगाया, तुम्हारे लिए कहीं पर भी झुकना जायज है, सजदा किसी के लिए जायज नहीं, हत्ता कि नबियों के लिए भी, अपने आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी सजदा करना जायज नहीं है। ना अपने पीर के लिए, ना अपनी माँ के लिए, ना अपने बाप के लिए, ना किसी वली के लिए, ना किसी कब्र के लिए, ना किसी बड़े से बड़े वली कामिल के लिए। ताजीम सबके लिए है, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, सजदा किसी के लिए। क्योंकि ये पेशानी को अल्लाह ने इतना मुकद्दस बनाया है, ये किसी के लिए नहीं रखा गया है। याद रखना, तुम अपनी पेशानी किसी जगह नहीं झुकाना। दिल झुका सकते हैं ताजीम के तौर पर। हम अपने औलिया कामिलीन के आस्थानों पर, बाज लोग ये हम पर एतराज करते हैं कि सुन्नी सब जो है कब्र पूजवा होते हैं, ये कब्रों की पूजा करते हैं। कुछ बगैर इल्म के लोग झुक गए तो इस पर सुन्नियत को सवाल के कटोरे में न खड़ा किया जाए। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के कायल हैं, ये उनकी जिहालतें न मालूम होने की वजह से झुके होंगे, लेकिन वो अल्लाह के वली के आस्ताने की ताजीम करते हैं, इबादत नहीं करते। किसी वली को आप खुदा मानते हैं, किसी वली को खुदा मानते हैं, बल्कि हम तो रसूल पाक को भी खुदा नहीं, उनकी विलादत का दिन मनाते हैं। अल्लाह की विलादत का दिन है क्या? नहीं है। और हुजूर की विलादत का दिन है। मीलाद मना करके हम ये साबित करते हैं कि हमारे रसूल पैदा हुए थे, वो खुदा नहीं थे, वो पैदा हुए थे। और खुदा वो है जो पैदा लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उससे कोई पैदा हुआ। हाँ, रसूल पैदा हुए। मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। हमारा अकीदा ये है, हमारी पेशानी किसी के सामने नहीं झुकती सिवाय रब्बुल आलमीन के। ये मजबूती के साथ रख लो, मजबूती के साथ। अब ऐ सुन्नियों, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हें खैर उम्मत होने पर फख्र होना चाहिए। चाहे जितने भी बड़े मर्तबे वाला है, मनसब वाला है, तुम हो सकता है उसको अखलाकन इज्जत दे दो, ताजीम कर लो, लेकिन अपनी पेशानी सजदे के लिए हरगिज नहीं झुकाओगे। चाहे जितने चमत्कारी भी देख लो, जितने दज्जाल भी देख लो, सर किसी के सामने सर झुकाओगे? हाँ, ये नहीं कहना कि इतना चमत्कार देखा बाबा, तुम्हारे चरणों में सर दे दिया। नहीं, अकीदा तुम्हारा ये है, मेरे सामने तुम किसी मुर्दे को जिंदा भी करके दिखाओगे तब भी सजदा मैं रब्बुल आलमीन को करूंगा। सजदा किसको करूंगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत को किया जाएगा। अरे जादूगर तो बड़े बड़े आते रहे हैं। हाँ, रस्सी डाल करके मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लोगों ने सांप बनाए थे कि नहीं बनाए थे? कुरान में इसका जिक्र है। फिरौन के बड़े बड़े जादूगर आए थे और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करना चाहा और छोटी छोटी रस्सियां लेकर के आए थे। मैदान में रस्सियां डाल दी, सब सांप बन करके दौड़ने लगे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम भी अपनी लकड़ी डाल दो, अपना असा जमीन पर डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला, वो इतना बड़ा असधा बन गया कि सारे जादूगरों के सांपों को एक ही बार में निगल गया, खत्म हो गया।